Good morning, children. As if you know that we have already started with the chapter number 1, that is the computer system organization. And this chapter we have already started yesterday with the concept what is the computer, where we said that computer is an electronic device which is used to feed raw facts or the data and process it and give the desired result. And out of that we have done the working model of the computer, how internally the computer works, that is your input. Then we have taken the CPU and then the output. This is the block diagram of your computer where we said that input means it can be with the help of a keyboard. मैंने input में सिर्फ keyboard कर लिया था just to explain you what do you mean by input, right? Now उसके बाद process करा था, then desired result को मैंने output पे यानी कि monitor पे display करा था. Today we'll share one thing that is जो कल हमने working model करा या block diagram करा जिसके अंदर हमने input, process, output पढ़ा है, this complete process is called as my IPO cycle. In your exams you can get one question of theory, that is what is IPO cycle and how can you explain the IPO cycle. IPO में I stands for the input, that input is given with the help of the keyboard and the data is stored in the memory, then it is being transferred to CU and ALU. After that the desired result is again taken back by the memory and displayed on the monitor. In the form of a output. This is called as my IPO cycle. Fine. This was the part which we have done yesterday. Now today we are proceeding with the first part, that is called as your input devices. Now what are your input devices? कौन-कौन सी ऐसी devices हैं जिनके through हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं? The first one is keyboard, very familiar. आपको पता है आपके पास एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. The first part of your keyboard looks like this. आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, सेकंड पार्ट यहाँ पर होता है और जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका इधर होता है. Now this is called as your F1, F2, F3 which is called as your function key keyboard. मतलब all the function keys, that is F1 से लेकर F12 तक की सारी function keys are present here. Then we have the keys over here. सेंटर में जो हमारा होता है दिस इज कॉल्ड एज माई मेन कीबोर्ड. और ये मेन कीबोर्ड आपका क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स योर अल्फाबेट्स, इट कंटेन्स योर नंबर्स, इट कंटेन्स द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो. और जो आपका राइट साइड पे एक छोटा सा बना हुआ होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड. न्यूमेरिक कीपैड का मतलब क्या होता है? मतलब जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली वैसे तो नंबर्स हमारे मेन कीबोर्ड पे भी प्रेजेंट होते हैं बट हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिक कीपैड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैलकुलेटर. एक रो में आपके पास 3 कीज प्रेजेंट होती हैं और ऑल द नंबर्स आर देयर, right? So that is why this is called as my numeric keypad, this is called as my main keyboard and this is called as my function key keyboard. This is the structure of the keyboard which contains the alphabets, numbers and the special keys in it. Fine. And next input device is your mouse. As you know that with mouse is basically like this. आपके पास जो mouse होता है वो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है which contains आपके पास आपके पास क्लिक बटन्स होते हैं. एक क्लिक बटन जो होता है एक को लेफ्ट क्लिक कहते हैं, एक को राइट क्लिक कहते हैं. नॉर्मली आपका जो वर्क करता है वो आपका लेफ्ट क्लिक वर्क करता है. राइट क्लिक सिर्फ एडिशनल फीचर्स को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक का यूज करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज योर माउस, जिसको बेसिकली हम लोग यूज किस पर्पस के लिए करते हैं? GUI पर्पस के लिए यूज करते हैं. जहां पर GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब मैं कीबोर्ड से काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देख करके उनको क्लिक कर करके I want to use it, तो मैं किसका यूज करती हूँ? माउस का यूज करती हूँ. सो माउस इज ऑल्सो माई इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज योर लाइट पेन. आजकल आपने देखा है आपके पास एक छोटे से पाम टॉप टाइप में आपके पास वो आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं जिनको अगर आप देखें तो उसके साथ एक आपके पास पेन भी प्रोवाइडेड होता है. इनफैक्ट आजकल मोबाइल फोन्स में भी हमारे पास एक पेन होता है जो कि पॉइंटर का पेन काम करता है. अगर मुझे अपना पेन से जैसे नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं या किसी चीज को पिन पॉइंट करना हो तो हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारा पेन होता है फॉर राइटिंग पर्पज के लिए. लेकिन कंप्यूटर के अंदर लाइट पेन जो होता है वो एज एन इनपुट डिवाइस वर्क करता है. अगर मुझे कोई भी ग्राफिकल डिजाइन ड्रॉ करना हो अपनी फ्री हैंड राइटिंग से या मुझे कोई सिलेक्शन करनी हो तो आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ लाइट पेन, राइट? दिस इज कॉल्ड एज माय इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज योर OMR.
आपने देखा होगा OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब होता है, बड़े कॉमन यूज बताती हूँ, जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम्स देने जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, हर क्वेश्चन की 4 चॉइसेस आपके पास गिवन होती हैं। जब आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं तो आप जो 1 2 3 4 में से जो भी आपका ट्रू करेक्ट आंसर होता है आप उसे क्या कर देते हैं, डार्कन कर देते हैं। जिन क्वेश्चंस को आप डार्कन करते हो, डार्कन करने के बाद उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, हमारा जो डार्कन क्वेश्चन होता है उसको हम पंच होल बना देते हैं और उसके बाद उस OMR शीट को हम कंप्यूटर में डाल देते हैं। जब हम उस OMR शीट को कंप्यूटर में डालते हैं तो जो जो मेरे करेक्ट वाले आंसर्स होते हैं वो मेरे को फटाफट पता चल जाते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, OMR शीट्स को जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। अब मैं एक और लाइव एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मेरे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट मेरी ये रही, ये OMR शीट है जिसके ऊपर कुछ होल्स वगैरह बने हुए मान लो, और एक और मेरे पास शीट है वो भी OMR शीट है। अब ये करेक्ट आंसर्स वाली है, तो जो करेक्ट आंसर्स वाली होगी, जो करेक्ट आंसर है उनको मैंने होल किया हुआ है। होल करने का मतलब पंच से उसको प्रॉपरली होल बनाया हुआ है। अब मैं जो होल वाली मेरी शीट होगी मैं उसको दूसरे बच्चे की OMR शीट के ऊपर रख देती हूँ। अब जहां वो पंच होल आ रहा है, अगर तो बच्चे का वहां डार्कन आ रहा है, इट मींस दैट इज द करेक्ट आंसर, तो वो आंसर शीट क्या होती है, जल्दी से चेक हो जाती है। इट टेक्स लेस टाइम टू बी कैलकुलेटेड, राइट। दिस कैन बी डन इन योर कंप्यूटर्स ऑल्सो, राइट। देन इज योर स्मार्ट कार्ड रीडर्स। आजकल आपको पता है आप अपना जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप बजाय अपनी कैश पेमेंट अपने साथ कैरी करने के आप अपना कार्ड कैरी करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप अपना कैरी करते हैं और आप अपनी जो ट्रांजेक्शन्स कराते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं, यू आर डूइंग योर ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर्स। एंड उन स्मार्ट कार्ड्स के ऊपर आपका क्या होता है, एक चिप बनी हुई होती है। वो चिप क्या करती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है एंड दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेट्स कनेक्टेड विद द बैंक इंफॉर्मेशन। जब वो दोनों एक आपस में कनेक्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन आपकी एक्सेप्ट कर लेता है और वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। देन आपका आता है बारकोड रीडर्स आते हैं। आपकी बुक्स होती हैं, जब भी आप मार्केट से परचेज करते हैं आपकी बुक्स के बैक साइड पर एक ऑप्टिकल ये मार्क रीडर, वो आपका बारकोड रीडर लगा हुआ होता है, ये बारकोड रीडर होता है। अब वो क्या करते हैं, हमारे पास आपने लाइब्रेरी में देखा होगा कि कौशिक मैम क्या करते हैं, हमेशा एक रेड कलर की लाइट ग्लो करने वाली उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होती है। वो जैसे ही या आप बिग बाजार में जाते हो तो आप वो कभी क्या करते हैं, कभी भी दे नेवर गेट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच यू आर परचेजिंग, वो सीधा क्या करते हैं, आपका जो QR कोड होता है उसके ऊपर वो डिफाइन कर, QR कोड कह रही बारकोड रीडर के ऊपर एक रेड कलर की लाइट थ्रो करते हैं। जैसे ही उस बारकोड के ऊपर आपका वो आ जाता है, लाइट शेड होता है, इमीडिएटली उस प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहां पर मेंशन किया हुआ आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर बारकोड रीडर, राइट। QR कोड आपके पास क्या होता है, आजकल बहुत सी मार्केट जब आप परचेज करने जाते हो या कोई चीज वो करते हो, खरीदते हो, तो वो कहते हैं ना ये QR कोड है, एक जिगजैग फॉर्म में ऐसे 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 कुछ एक इनफैक्टेड, मतलब आप कहते हो ना QR कोड, जैसे पेटीएम करते हो, पेटीएम के ऊपर एक QR कोड होता है, जैसे ही आप उन दोनों को मैच करते हो इमीडिएटली आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहां पे डिस्प्ले कर देता है। सो वी कैन यूज द QR कोड ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज माई इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक सेंसर्स आपके पास क्या होते हैं, आजकल हर ऑफिशियल ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर टीचर्स की अटेंडेंस या एम्प्लॉइज की अटेंडेंस के लिए एक बारकोड रीडर बनाया गया जिसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। आप अपनी फिंगर जब आप वहां पे पुट करते हैं तो आपका नाम और आपका कोड वहां पे लिखा हुआ जाता है, जिससे हमें आपकी अटेंडेंस के बारे में पता चलता है। सो बेसिकली बायोमेट्रिक सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, टीचर्स एंड एवरीबॉडी। नाउ टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, आपके फोन, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द टच स्क्रीन। कि आपको कोई भी काम करना हो, इंस्टेड ऑफ यू आप बार बार टाइप करोगे, आप क्या करते हो, पिक्टोरिकल फॉर्म में आपके पास पिक्चर्स बनी होती है। मान लो अगर मुझे क्रोम ढूंढना है तो क्रोम का एक फिगर बना होगा, आई क्लिक ऑन दैट, क्लिक करने का मतलब है आई पुट माई फिंगर ऑन इट, और जैसे मैं फिंगर पुट करती हूँ इमीडिएटली वो क्या करता है, मेरा क्रोम जो होता है, गूगल जो है वो ओपन कर देता है, देन आई कैन सर्च एनीथिंग ओवर हियर there, right? Now next आपके पास आता है माइक्रोफोन। As you know, माइक्रोफोन is also your input device, जिसका बेसिक काम क्या होता है, आपकी ऑडियो जो है, अगर मुझे कोई डेटा ऑडियो के थ्रू भेजना हो तो आई कैन यूज द माइक्रोफोन्स फॉर दैट पर्पस। एक हमारे पास आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा का मतलब होता है स्टिल इमेजेस, या फिर आप क्या करते हो, वीडियोस अगर आपको करनी है तो सेंड करनी है, या आप भेजना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो, वॉट एवर। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो दोनों तरफ से क्या होता है, आपको
आपको लाइव एक दूसरे की फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द वेब कैमरा। एक्चुअली ये सारी वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, और ये सारी इनपुट डिवाइसेस हमारी यूज होती है जो आजकल हम रिसेंटली अपने एक कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर वी आर यूजिंग इट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ओनली। फाइन। बीच वाले पार्ट को सीपीयू कहते हैं, वेयर सीपीयू स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स कल बताए थे। वन इज द एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड इज द सीयू व्हिच इज कॉल्ड एज माय कंट्रोल यूनिट, third is the MU which is called as my memory unit, and this memory unit contains the RAM and the ROM, where RAM stands for the random access memory, ROM stands for the read only memory, right? मैंने यहाँ एक एडिशनली एक वर्ड यूज करा है जिसका नाम है रजिस्टर्स। एक्चुअली ये रजिस्टर्स होते क्या है? दे आर बेसिकली द हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। आपका रजिस्टर एक स्टोरेज एरिया है, यानी कि वो एमयू का ही एक पार्ट है। एमयू को बेसिकली कहा क्या जाता है? दे आर द रजिस्टर्स, राइट? क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू का। अब इसका अपना एक साइज होता है, जितना भी डेटा आप डालते हो वो बिट्स की फॉर्म में मेमोरी में जाता है। अब वो बिट्स जो होती है वो डिफरेंट साइजेस की होती है। एक 16 बिट होता है, एक 32 बिट होता है और एक 64 बिट होता है। एएलयू, सीयू और एमयू को थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी, जहां पे मैंने कल भी बताया था अगर हमें क्या करना है, स्टोरेज करनी है, तो हम सीधा किसके पास जाते हैं? मेमोरी के पास जाते हैं। अब मेमोरी में भी 2 पार्ट्स पड़े, रैम एंड रोम का पड़ा, जहां पे रैम को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज माय वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज कॉल्ड एज योर मेरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एक को वॉलेटाइल, एक को नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, जिसमें वॉलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ही हम अपना पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं और इमीडिएटली उसमें जो डेटा होता है वो सारा हमारा गायब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज माय रैम, राइट? दैट इज कॉल्ड एज माय वॉलेटाइल मेमोरी। एंड एक होता है हमारा नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो हमारी परमानेंटली मेमोरी के अंदर स्टोर रखता है। अब जब भी आप अगले दिन सुबह आते हो, अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, तो आपकी विंडोज के लिए क्या आपको दोबारा से विंडोज का कुछ लेना पड़ता है? कुछ कंटेंट फाइल ओपन वगैरह कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ पावर बटन ऑन करते हो, ऑन करते ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी में से उसको क्या करता है? रीड करता है। क्यों? क्योंकि वो बायोस सेटअप जो होता है मेरा, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रोम के अंदर होता है। इसीलिए रोम को हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं और रैम को हम लोग टेम्परेरी कहते हैं। मतलब जब तक स्क्रीन दिखाई दे रही है तब तक वो हमारी मेमोरी है। जैसे ही लाइट ऑफ, पावर सप्लाई कट करेंगे, इमीडिएटली वो सारा डेटा हमारा क्या चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज माय रैम, राइट? सो ये हमारी रैम और रोम हो गई। नाउ अब रैम और रोम के अलावा एक आपके पास सीयू था जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा आप डाल रहे हैं। वेदर यू आर गेटिंग द अल्फाबेटिकल डेटा, वेदर यू आर गेटिंग द अरिथमेटिक डेटा मीन्स न्यूमेरिकल डेटा ले रहे हैं, या आप लॉजिकल टाइप का डेटा ले रहे हैं, तो उन डेटा को आपके पास सारी स्टोरेज किसके पास जाती है? सीयू के पास जाती है। सीयू डिसाइड करता है आपका डेटा किस टाइप का है। अगर वो अरिथमेटिक और लॉजिकल टाइप का डेटा होगा तो वो किसको ट्रांसफर कर देता है? एएलयू को कर देता है। अदरवाइज वो क्या करेगा? वो डेटा अपने पास रखेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो मेमोरी में स्टोर करने के बाद आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा। फाइन। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड विद द इनपुट डिवाइसेस, वी हैव फिनिश्ड विद द सीपीयू। सीपीयू के अंदर हमने रैम और रोम को कवर करा, अलोंग विद दैट हमने रजिस्टर्स कवर करे। अब कल की क्लास के अंदर विल कंटिन्यू विद द आउटपुट डिवाइसेस एंड द स्टोरेज जो की जाती है कंप्यूटर के अंदर। एक एडिशनली साथ में ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो डेटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स एंड बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स आपकी क्या कहलाती है? स्टोरेज यूनिट्स कहलाती है। दीज आर कॉल्ड एज योर स्टोरेज यूनिट्स। एक्चुअली जो भी डेटा आप कंप्यूटर में डालते हो दैट डेटा इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स। एक्चुअली हम ये वर्ड यूज करते हैं, कंप्यूटर understands machine language which is in the form of binary codes, that is 0 and 1.
एक्चुअली ये बात कंप्यूटर के लिए अच्छे से याद कर लो। कंप्यूटर को कभी ये समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो। इफ यू आर टाइपिंग ए, उसको नहीं पता वो ए है। वो क्या अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज। अब वो मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स, जहां पे बाइनरी वर्ड का मतलब क्या हो गया? बाई प्लस नरी। बाई का मतलब होता है 2 और नरी का मतलब होता है नंबर्स। 2 नंबर्स को ही अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर केवल, और वो 2 नंबर्स कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं, राइट। तो कंप्यूटर जितनी भी डेटा डालता है, जो भी वैल्यू आप उसको कंप्यूटर को देते हो, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। सपोज मैंने एक वैल्यू डाली 0 1 0 0 0 0 1। अब मैंने ए टाइप किया, लेकिन वो ए ऐसे नहीं होकर के वो ऐसे ले जा रहा है मेमोरी के अंदर। यहाँ पर each 0 each 1 is called as my cell or a bit। इसको क्या कहते हैं? या तो हम सेल कहते हैं या फिर बिट कहते हैं। अब ये बिट्स कंबाइन होकर के क्या बनाती हैं? बाइट्स बनाती हैं। अब ये स्टोरेज यूनिट्स हायर पर हायर होती जाती है। इन यूनिट्स के बारे में विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू।